अभी हमें सब्सिडी मिली है गवर्नमेंट से, तो सब्सिडी मिली है मतलब वी कांट ले ऑफ एनीबडी। जितने भी लोगों को हमने ले ऑफ किया था मार्च और अप्रैल में, हमने सबको वापस ले लिया एंड एवरीवन विल गेट देयर फुल सैलरी। वो फुल सैलरी में से 75% गवर्नमेंट से आएगा और 25% कंपनी से आएगा। तो राइट नाउ सबको हमने वापस लेने का ऑप्शन दे दिया है। कुछ Okay, everyone, I have my good old friend Angelina De Silva with me all the way from Toronto. So Angie और मैं back in 2011 मिले थे जब Angie, I think you were a student back then. yes, in Centennial College, and till then we are still in touch. And you got your PR, citizenship, and same with me. और लेटली मैंने एनजी का बड़ा अच्छा फेसबुक स्टेटस देखा जिसमें एनजी इज saying nice things, not nice things actually, true things like how Canada is treating its immigrants. And then we started talking and we thought maybe we should make a video about it. So Angie, how are you doing? I'm doing very good, thank you. So Ontario में इस वक्त COVID-19, how is it going? The situation is under control, but as far as finances go, I think everyone is pretty much covered. That even with the CRB, there's no, they're not going to test the claims. They're not going to Let's explain take taxes. CERB. What is CERB? CRB is something that the government is giving as a relief fund to everybody that's lost their job as a result of COVID-19. So if you had a loss of income, so it won't be for somebody who's been on a sabbatical or is unemployed. It's only for people who are employed and lost their jobs or their hours were cut down or something like that, something related to COVID-19. They are eligible for CRB, and it's very simple. They've made it stress-free so that I people think don't have to $2,000 दे रहे हैं ना? hassles. Yes, so it's $2,000 per month, and you have to go online, answer just 2 questions, and the money is deposited. What I hear, because I haven't applied, what I hear is that within 2 days, 2 business days. So that's a really big relief. And where I work as HR, and we have about 500 Angie, can you employees. speak in Hindi because मैं चाहता हूँ कि हमारे हाँ, नॉर्थ इंडिया for में sure. लोग जाने For इस sure. बारे में. Yeah. Yes, for sure. So जहाँ मैं काम करती हूँ वहाँ पे about 500 employees हैं. We have about 300 employees in US and Canada, और we have other employees जैसे Australia, UK and Philippines. Philippines में हमारे almost 150 employees हैं. तो ये सारे इतने सारे एम्प्लॉइज का अलग अलग कोई EI पे है. EI is when you lose your job, Yes, not employment related to insurance. COVID-19, if you just get laid off or whatever. Yes, तो वो है. CRB है, प्लस अभी हमें सब्सिडी मिली है गवर्नमेंट से. तो सब्सिडी मिली है मतलब वी कांट ले ऑफ एनीबडी. जितने भी लोगों को हमने ले ऑफ किया था मार्च और अप्रैल में, हमने सबको वापस ले लिया एंड एवरीवन विल गेट देयर फुल सैलरी. वो फुल सैलरी में से 75% गवर्नमेंट से आएगा और 25% कंपनी से आएगा. तो राइट नाउ सबको हमने वापस लेने का ऑप्शन दे दिया है. कुछ लोग वापस आना नहीं चाहते बिकॉज ऑफ डे केयर एंड अदर थिंग्स, बट दे हैव द ऑप्शन टू कम बैक. बट उसमें कोई कंडीशन रखी तुम्हारे बिजनेस की, कितना % बिजनेस ड्रॉप होना चाहिए या कुछ? फिलहाल तो नहीं. फिलहाल तो हमने सबको वापस ले लिया. इनफैक्ट जितने लोगों ने हमें ये बोला था कि हमारे वेकेशन डेज बाकी है तो हमें ले ऑफ दे दो, पर फॉर द नेक्स्ट 2 वीक्स की पेइंग अस अ वेकेशन, तो हमें हमारी रेगुलर पे मिलती जाएगी एंड देन वंस वी एग्जॉस्ट दैट फिर हमारा पे आप कट कर देना. तो उनके तो हमने वेकेशन भी वापस दे दिए बिकॉज गवर्नमेंट हैज अलाउड अस टू बैक डेट फ्रॉम 13th of April. 13th of April से ये शुरू हुआ है सब्सिडी एंड वी कैन बैक डेट 2 weeks. तो which means Yeah, I that think 15th of March से eligible है. That was 13th of April. 13th of April से सब्सिडी शुरू होती है. 15 मार्च से कनाडा में लॉकडाउन शुरू हुआ था. तो yes. बहुत बढ़िया है. तो मतलब सपने वाली बात है कि लोग घर बैठे हैं. अब पता नहीं अब किनकी जानबूझ के लोग कुछ घर बैठे हैं या सभी की जॉब गई है. पर मुझे इतना पता है कि हम सभी ने मिनिमम वेज से शुरुआत करी है कनाडा के अंदर. जब हम स्टूडेंट थे शुरुआत में, मतलब इट्स एवरीवन्स लाइफ स्टोरी. तो मुझे अच्छी तरह याद है कि अगर आप 40 घंटे फुल टाइम काम करो, मिनिमम वेज जैसे उस वक्त $11 के आसपास हुआ करती थी, आपके टैक्स कटने के बाद $2,000 नहीं मिलते थे. yes, it was difficult times as a student. अब मतलब सही है. मतलब आई थिंक गवर्नमेंट ने ये बड़ा अच्छा किया है कि दे टुक केयर ऑफ मोस्ट वल्नरेबल. तो मोस्टली जो 4-5 हजार वाले लोग हैं उनको तो नुकसान उठाना पड़ रहा है.
यस, पर अगर मैं फाइनेंशियल एस्पेक्ट की बात करूं कनाडा के रिलेटेड, तो मैं इतना बोल सकती हूँ कि कनेडियन गवर्नमेंट इस बात में बहुत ही डिलिजेंट, बहुत ही ऑन टॉप ऑफ द गेम है। क्योंकि लास्ट ईयर भी मेरी एक फ्रेंड की जब ले ऑफ हो गया था, और उसका ले ऑफ हो गया था, उसको पता नहीं था कि वो ईआई के लिए क्वालिफाई करती, क्योंकि वो ऑन प्रोबेशन ले ऑफ हुई थी। तो उसने जब उसको पता चला 2 महीने बाद दैट शी क्वालिफाइज, जब उसने कॉल किया तो गवर्नमेंट वाज सो गुड कि उसको 3rd महीने की ईआई के साथ वो बैकडेट करके 2 महीने का भी ईआई इकट्ठे दे दिया। मतलब ऐसे नहीं कि आई वी नो, विल मैं तुम्हें नो। किस्सा बताता हूँ। तो मैं ना 2018 में आई वाज इन इंडिया फॉर ऑलमोस्ट 8-9 मंथ्स। सो कनाडा या में क्या होता है कि अगर आप 6 महीने से बाहर हो तो आपका हेल्थ इंश्योरेंस वो मतलब बंद कर देते हैं। या या तो मैं वापस आया तो मेरा फोन नंबर चेंज हो गया था। या तो दे मस्ट हैव कॉन्टेक्टेड मी कि यू हैवंट मतलब योर एमएसपी इज नॉट एक्टिव, और दे ट्राइड टू रीच आउट टू मी, बट मेरा नंबर या बदल गया था तो वो अपने आप बंद हो गया। फिर मेरा अचानक से ना मतलब मैं कहीं फिसल गया था, तो मेरी बैक में थोड़ा स्प्रेन था, तो आई वेंट टू इमरजेंसी डॉक्टर देखने गया मैं। वो तो नंबर था, उसने पैसे डॉक्टर कोई लेते नहीं है कनाडा में। 1 महीने या बाद मेरे पास बिल आ गया $1,050 का, क्योंकि कनाडा में ये मैं व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि अगर आप का हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, नीदर प्राइवेट नॉर गवर्नमेंट का, तो डॉक्टर की विजिट के 1,050 लगते हैं ब्रिटिश कोलंबिया में। एक मतलब फ्लैट है, ओके उसके ऊपर अलग। तो आई वाज रियली शॉक्ड एंड सैड कि मुझे ध्यान ही नहीं था, मैं भी लापरवाह था कि मेरा एमएसपी या सर्विस प्लान एक्टिव है या नहीं है। सो आई कलेक्शन में मुझे फोन आ गया, तो मैंने फोन किया उनको कि भाई ऐसे ऐसे हुआ है कि मैं आ गया था वापस, बट मुझे पता नहीं था कि मेरा कट गया है, और फोन नंबर मेरा बदल गया था। तो या उसने कहा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, बताओ कब से बैकडेट करना है। तो मैं आया था फेब मार्च में, हाँ और मेरा जो स्मॉल माइनर एक्सीडेंट हुआ था वो अगस्त सितंबर में हुआ था, और अक्टूबर में आई गॉट अ कॉल रिगार्डिंग कलेक्शन। तो मैंने बोला कि अगस्त में, कह रही पीछे 1 महीना और पीछे कर देती हूँ। उसने कर दिया और कलेक्शन से भी हटवा दिया, और आई डेंट हैव टू पे सिंगल थिंग। तो या ये दे आर सारी वेरी गुड विद ऐसा दिस। लगता है इंडिया में तो मेरे बाप दादा मामा चाचा ताऊ के भैया मतलब उन्हें चक्कर। मेरी मम्मी जब रिटायर हुई इन इंडिया, तो मेरी मम्मी को अपना प्रोविडेंट फंड वापस लेने में 3 साल लगे। वाह। और वो भी 3 साल पूरे चक्कर मारने के बाद मिले। वो 3 साल ऐसे नहीं कि घर पे बैठ के वो मिले, वो पूरे इस ऑफिस टू उस ऑफिस, ये अधिकारी वो अधिकारी, रिक्वेस्ट धमकी सब कुछ देने के बाद 3 साल के बाद मेरी मम्मी को अपनी गवर्नमेंट अपना ऑफिस, हाँ काम करवाने गवर्नमेंट के लिए काम तब पे, पैसे देने पड़ते हैं इंडिया में। हाँ हाँ वो भी किया, मेरी मम्मी ने वो भी किया। तो 3 साल के बाद इतना सब करने के बाद 3 साल के बाद उसको अपने ही पैसे मिले प्रोविडेंट फंड। तो इधर तो इट्स यहाँ पर वेरी गुड, तो लाइक जो मेरी सरकारी गवर्नमेंट से डील करने में कई बार तो मेरे आंसू निकल जाते हैं, मतलब इतनी आसानी से काम हो जाता है ना, मैं रो पड़ता हूँ कि नहीं बस इतना सही। हाँ इंडिया में मुझे याद है जब हम पैसे जमा करने जाते थे तो अपनी एक अलग से पढ़ाई होती थी। तो मेरे फ्रेंड्स हैं वो इंटिमिडेट नर्वस फील करते हैं कि गलत भर दिया, मेरे घर वाले मार डालेंगे मुझे। 2-3 लड़के हम साथ में जाते थे, अच्छा 10 के इतने नोट हैं, 20 के इतने नोट हैं, 50 के इतने नोट हैं। या फिर उसको वर्ड्स में भी लिखो, नंबर्स में भी लिखो, डिनोमिनेशन सही होनी चाहिए, हाँ कौन से बैंक में कर रहे हो, कौन सी ब्रांच में कर रहे हो, मतलब इतनी तगड़ी ब्यूरोक्रेसी। और कनाडा में जाओ बैंक में 2 मिनट में काम हो जाते हैं, लाइक यस यस इट्स एब्सोल्युटली। इनक्रेडिबल। जैसे मैं बोल रही थी, वो मेरी फ्रेंड भी जब उसको पता चला कि वो क्वालिफाई हुई, इसने अप्लाई किया, उसका बैकडेट हो गया, तो मतलब वो रिचर हुई बाय लूजिंग अ जॉब, क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं 4 महीने तो के पैसे ऐसे इकट्ठे आ जाएंगे। शी एक्सपेक्टेड कि ये 1 महीने के आ जाएंगे और फिर जब भी हो जाएगा वो आ जाएगा। $1,000 एक्स्ट्रा दे रही है ऑन टॉप ऑफ 2000। हाँ हाँ, यस 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 यस। तो तो ऐसे सब भी है, एंड देन इफ यू हैव किड्स यू हैव मोर हेल्प फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो ये तो है, गवर्नमेंट कनाडा इज की वेरी गवर्नमेंट वेरी। की बात में दाद देनी चाहिए कि जो इमिग्रेंट लोग हैं, जो परमानेंट रेजिडेंट और सिटीजन नहीं भी हैं, उनका भी प्रॉपर ख्याल रखा है, उनको भी पैसे दे रही है गवर्नमेंट। Absolutely, absolutely, absolutely no complaints regarding that. तो मेरी जो भी थोड़ी बहुत शिकायत थी जस्टिन ट्रूडो से, आई थिंक ही शोड ग्रेट एम्पैथी, और मतलब बहुत बढ़िया काम किया उसने, बहुत बढ़िया। Yes, अब for आगे sure, जाके पता नहीं 100%. इकोनॉमी का क्या होगा, बट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, यू टेल मी हाउ मच आप कितना मतलब अर्न करते थे जब व्हेन यू वर अ पार्ट टाइम स्टूडेंट। Part-time student, I believe I was at Subway and $11-12, I think. I don't know. अभी नहीं याद नहीं है मतलब मुझे, पर बाइकली चेक मतलब मंथली कितना बनाते होंगे आप।
Oh, monthly 400, maybe 1,000. 1000 1,000 अभी 2000 मिल रहे 12 हैं घर बैठने के। मे बी 1,000 या, पर ये बात है 2011-12 हाँ, की, तो बट स्टिल मतलब मैंने भी कभी एज अ पार्ट टाइम स्टूडेंट $1400-1500 से ज्यादा नहीं कमाए, क्योंकि आपको पढ़ाई भी करनी हाँ, होती है, और यस, अब हमारे टाइम से लेकर अब तक गवर्नमेंट ने कितना कुछ अच्छा किया है, लाइक इफ या, यू 2011 में हम मिले थे, तो मैं ब्रिटिश कोलंबिया में स्टूडेंट था, तुम या। टोरंटो में थी। तो उस वक्त के रूल्स के बारे में जरा बताओ कि द जर्नी, टेल मी अबाउट योर जर्नी फ्रॉम एन इंटरनेशनल स्टूडेंट टुवर्ड्स नाउ, लाइक व्हेन यू आर। To citizen, yes. So I came as an international student. 2011 में आई मैं as an international student में, और मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेड डिप्लोमा शुरू किया मई 2011 में। वो खत्म हुआ दिसंबर 2011। तब तक मैंने कोई जॉब वगैरह कुछ की नहीं थी, बिकॉज इट वाज अ वेरी इंटेंसिव प्रोग्राम, तो आई वाज जस्ट स्टडिंग एंड आई वांटेड जॉब टू तो उस फिनिश वक्त विद इट अलाउड भी नहीं थी। आई थिंक यू हैव टू फॉर हैड टू 6 months। 8 months, दो या, सेमेस्टर करो, 2.33 जीपीए लाओ, देन यस यू यस अप्लाई, देन यू गेट इट। तब तक तो बंदे की यस, पढ़ाई हो जाती है। exactly, yeah, I think it was 6 months, but I may be wrong. I think it was 6 months की, पहले 6 months not बट allowed। इट यूज्ड टू टेक 8 months, 6 हाँ, months दे यूज्ड टू से, क्योंकि पर जीपीए रिपोर्ट आने में तो 1-2 महीने लगते हैं ना दूसरे करेक्ट सेमेस्टर करेक्ट, की, तो यस। तो वो हुआ, एंड देन मार्च 2012 तक मैं यहीं पे थी, टोरंटो में थी। आई फिनिश माई स्टडीज, मेरा रिजल्ट वगैरह सब कुछ लेके, सिन नंबर लेके, फिर मार्च 2012 में आई मूव टू विनिपेग, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स मूव हो गए थे विनिपेग में, तो दैट्स द रीजन व्हाई आई फिगर्ड दैट इट बी इजियर आपका टू फाइंड कितने टाइम का वर्क परमिट आया था? जॉब। कितने टाइम का? ओ, इमीडिएटली, डिडंट टेक नहीं नहीं, टाइम एट मतलब ऑल। उसकी Oh, एक्सटेंशन, it's मतलब कब तक उसकी वैलिडिटी? expiration, एक साल। एक एक साल तो आई गॉट माई वर्क परमिट मार्च 2012, और उसकी एक्सपिरेशन थी मार्च 2013। तो एक साल का वर्क परमिट था। मैंने विनिपेग गई, विद इन आई थिंक 20 days मुझे जॉब मिल गई मेरी इंडस्ट्री में, क्योंकि मैं होटल मैनेजमेंट बैकग्राउंड की हूँ, तो मुझे होटल्स में करना था। तो आई गॉट अ जॉब विद इन माई इंडस्ट्री। 6 months के बाद तभी रूल ये था कि यू वर्क फुल टाइम परमानेंट ऑन अ जॉब, बट प्रेफर्ड दैट इट इज योर इंडस्ट्री, क्योंकि अगर योर इंडस्ट्री का तो चांसेस बेटर होते हैं। तो योर जॉब एंड देन अप्लाई फॉर परमानेंट रेसिडेंस। तो मैंने 7 महीने बाद अप्लाई कर दिया, और फिर मुझे कॉल आ गई, मतलब मेरा वर्क परमिट खत्म होने के 10-15 दिन पहले मुझे कॉल आ गई। उन्होंने बता दिया कि मैं So you एक्सेप्ट हो applied गई to हूँ a provincial माय, nomination program over या, there? प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम, एंड देन इट वाज लाइक अ केक वॉक, बिकॉज हाँ, प्रोविंशियल नॉमिनी हो गया। फिर दैट तो वाज मार्च। सस्कैचुअन, मैनिटोबा, मतलब वो ऐसा था कि यस जब यस, मतलब भगवान के सारे रास्ते बंद हो गए हैं तो वहां चले जाओ, कुछ ना कुछ मिल जाएगा तुम्हारा। यस यस, क्योंकि अभी मैं जब इतने लोगों को देखती हूँ ओवर द इयर्स बीइंग स्ट्रेस्ड अबाउट पीआर, मतलब मुझे तो ये स्ट्रेस पता ही नहीं है, हाँ, क्योंकि मेरा अक्टूबर में क्या कहते हैं, मेडिकल आ गया था। मेडिकल का मुझे डेट मिली थी नवंबर में, एंड देन उसके फॉलोइंग फेब, सो विच मीन्स दैट 2013 के मिड 2013 और समथिंग मेरा पूरा फुल एंड फाइनल सब कुछ हो गया, जो फीस पे करनी थी एंड एवरीथिंग, एंड बाय एंड ऑफ 2013 मैं परमानेंट रेसिडेंट हो गई थी। सो इफ यू टेक्निकली सी, about 2.5 years from when I entered Canada, I was a permanent resident. एंड देन सिटीजनशिप का थोड़ा सा चेंज होते गया, कि पहले उन्होंने कहा कि जितना टाइम आपने पीआर होने के पहले गुजारा है वो हम कंसिडर नहीं करेंगे, पर हाँ, फिर रूल चेंज हो गया कि ये वो कंसिडर ये था करेंगे। कि स्टीफन हार्पर ने 1 साल थोड़ा लंबा कर यस दिया, यस यस यस, पर जब उन्होंने रूल बैक कर दिया कि वापस पुराना रूल, फिर मैं इमीडिएटली क्वालिफाई होगी। तो फिर अक्टूबर 2017 में मैं क्वालिफाई हुई, और अर्ली 2018, नहीं, मिड 2018 मेरी सिटीजनशिप हो गई। तो वैसे लाइफ बताओ कैसे बदली, मतलब जब आप इंटरनेशनल स्टूडेंट थे, मतलब इमिग्रेंट से पीआर तक, क्या मतलब डिफरेंस लगा? अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटीज का बहुत बड़ा डिफरेंस हुआ, बिकॉज एज अ स्टूडेंट एंड एज somebody on limited work permit, it was always stressful, in terms of that you can't change your industry or you can't change your job. You have to be careful कि आपकी sponsorship कहाँ है, city आप change नहीं कर सकते, province आप change नहीं कर सकते, तो वो सब थोड़ा सा you have to take care. But as soon as you become permanent resident, then the world is your oyster. आप अपनी इंडस्ट्री चेंज करो, करियर चेंज करो, प्रोविंस चेंज करो, कुछ भी करो, it's up to you. So वो मुझे लगा कि that freedom, and obviously as a citizen, I have that security, financial security तो थ्रू आउट थी, फाइनेंशियल तो कभी मुझे इश्यू हुआ ही नहीं इन ऑल माई इयर्स इन कैनेडा, बट वो एक अदर सिक्योरिटी की, लाइक अब मैं सिटीजन हूँ, अब मुझे कोई वरी नहीं है कि वापस जाना है या इंस्टेबिलिटी है, ऐसे कुछ, नथिंग, दैट दैट नाउ दिस गवर्नमेंट विल मेक श्योर दैट
you're okay. और they make sure you're okay in terms of कि अगर आप EI पे भी हो और आपके जितने वीक्स है आपने एग्जॉस्ट कर लिए, आपने अगर उनको प्रूफ दिखाया कि इतने महीनों से मैं अप्लाई कर रही हूँ जॉब के लिए पर मुझे मिला नहीं है जॉब अब तक, तो वो फिर भी EI आपका कंटिन्यू रखते हैं जब तक कि आपको जॉब नहीं मिलती तब तक, एंड देन दे ऑल्सो गिव यू रिसोर्सेज ताकि आपको जॉब मिले, कि वो आपको फोन नंबर्स मतलब देंगे ग्रुप्स बेरोजगारी के। भत्ता, अगर हिंदी में बोले बेरोजगारी भत्ता। तो they really take care of you. तो उतना तो I would say I was lucky, but as much as I can see कि everyone has a good journey here for sure. चलो ये तो मतलब करियर अपॉर्चुनिटीज और Yes. वैसे तो मतलब बढ़िया देश है ही, बट आपने काफी जगह बदली, लाइक आप टोरंटो भी रहे, मैनिटोबा भी रहे, फिर एडमिंटन, देन Edmonton. तो नई जगह में दोस्त बनाना, अब वी मिस पीपल, हम इंडियन स्पेशली, हमें आदत है ज्यादा लोगों में रहने की, कम्युनिटी में, तो माँ बाप, कजन्स, दोस्त, यार ये वो बातें करना, कभी भी किसी के घर चले गए, तो वो चीज कैसे मतलब एक्सपीरियंस रहा तुम्हारा कनाडा में पर्सनल लाइफ के रिगार्ड से? हाँ, इट्स ट्रू। मैं वेरी ऑफन इस चीज के बारे में बात करती हूँ विद माय फ्रेंड्स एंड फैमिली कि हाउ मैंने बहुत सारी शादियां मिस की, मैंने बहुत सारे बर्थडेज मिस किए, बहुत सारे लाइफ इवेंट्स लाइक लोगों के, नॉट माइन, लोगों के बैक इन इंडिया मिस किए, किसी की शादी, किसी की बेबी हुई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा मैंने मिस किए। बट आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ प्राइस यू पे। और मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग अर्ली ऑन इन लाइफ आ गए, लाइक एज अ स्टूडेंट से, लाइक अर्ली 20s, लेट टीन्स एक्सेट्रा, उनके लिए ट्रांजिशन इजी रहा है। आई एम नॉट सेइंग कि दूसरों के लिए नहीं रहेगा, पर उनके लिए ट्रांजिशन इजी रहा है क्योंकि उन्होंने इतना वक्त बिताया ही नहीं इंडिया में। मैंने देखा मैच्योरिटी भी कई लोगों में कम होती है, 18-19 साल की उम्र में आ जाते हैं वो, 25 की उम्र तक तो मैंने देखा 40,000 जुए में हार चुके होते हैं वो। दैट इज पर्सन टू पर्सन। गाड़ियां ले लेते हैं स्पेशली नॉर्थ इंडिया के लड़के, मतलब एक तो यहाँ पर लोन तो ऐसे बटता है जैसे प्रसाद बट रहा हूँ। लोग मतलब क्रेडिट कार्ड और ये वो, मतलब वो तो फ्रॉम पीपल टू पीपल, बट जो द गुड पार्ट अबाउट कमिंग अर्ली इज कि यू हैव टाइम टू फेल। तो आपकी पीआर की हुई या आपने आपको मतलब फाइनेंस में जाना है पर यू वांट टू वेट, यू वांट टू अर्न सम मनी विद ट्रकिंग, और अभी आपको फ्रेश स्टार्ट करना है 23-24 पर आपने बैंक बैलेंस बना के रखा है, तो ऐसा सब जो प्लानिंग है वो अगर आप यंग आते हो तो इट्स इजी। बट इफ यू कम लाइक मिड 20s से आपके पीआर के लिए टाइम लग गया, आपके करियर के लिए टाइम लग गया, देन द फ्रस्ट्रेशन इंक्रीजेस कि ओ ये देखो ऐसे कर रहा है, वो देखो वैसे कर रहा है, आई एम स्टिल lagging behind. Canada still doesn't punish you for your age. No, never. Even change of careers. I know people changing careers 33, 35, 37. They just completely change careers. I didn't change so late. I changed early on, but I changed thrice. I came from hotel background. I went into finance. I worked finance. And then I moved into HR, and I'm working HR since last 3 years. So even I moved quite a lot. But Canada is very forgiving, very generous in those aspects. कि आपको change करना तो ऐसे नहीं कि क्यों, मतलब इंडिया में it's very stringent, थोड़ा सा rigid है these boundaries to cross. बहुत कि आपने जो स्टडी की है उसको छोड़ के अगर कुछ और करना है या फिर आपको ऐसे करियर पूरा चेंज करना है तो it's not as easy. इधर मैंने notice किया it's quite easy. 30 साल के होते ही वाले मतलब बहिष्कार खत्म, एक्सपायरी डेट लगा देते हैं बच्चों पे। या तो ये यहाँ पे यू हैव द फ्रीडम टिल द एंड ऑफ योर लाइफ। मैं जब स्कूल में थी 2011 में जब स्कूल में थी तब मेरे साथ देयर वर 40-year-olds, 50-year-olds, women, men, all of them studying. तो you have that liberty that people towards the end of their life they decide okay I want to work and I want to work something, it's okay. आप कर सकते हो, ऐसा कोई एज लिमिट नहीं है यहाँ पे कि कि इस एज के बाद यू कैन डू, पीपल ट्राई एवरीथिंग एवरी डे, तो उतनी लिबर्टी यहाँ पे है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी आई थिंक इज वन ऑफ द बिगेस्ट यूएसपीज, सेलिंग पॉइंट ऑफ कनाडा फॉर श्योर। और वेल्थ डिस्पैरिटी, मतलब आप ऑफिस में काम करते हो, आप भी सबवे अफोर्ड कर सकते हो, मैं कंस्ट्रक्शन वर्कर हूँ, मैं भी सबवे अफोर्ड कर सकती हूँ, आपका जो सुपर बॉस है उसने भी सबवे मंगाया, तो यू नो व्हाट आई मीन, there's not so much disparity in wealth which I would see in some other countries because I've traveled a lot. तो मैंने बहुत countries का देखा है कि कैसे wealth distribution है, तो उस हिसाब से I think Canada is very good. US comes close second, US में भी है कि wealth disparity इतनी नहीं है, पर Canada सबसे I would say. अच्छा, आप US में रहे हो, US में और कनाडा में how do you rate Canada as compared to US, like as an immigrant here? There's certain advantages and disadvantages of
लिविंग इन आइदर और कंट्रीज। यूएस में मैंने नोटिस किया क्राइम रेट बहुत हाई है, स्पेशली यूएस इफ यू में आर इन। आप किधर रहे थे, कौन सी सिटी में? मैं रही थी, सो आई हैव लिव्ड इन नॉर्थ कैरोलिना, आई हैव लिव्ड इन नाशवा, न्यू हैम्पशायर, एंड आई यूज्ड टू वर्क इन रेडनेक मैसाचुसेट्स। मतलब काफी रिपब्लिकन स्टेट्स, थोड़े मतलब। वो तो मुझे तभी इतना पता नहीं था, आई वाज हाँ, वेरी यंग। मतलब न्यूज़ में जैसे मैं देखता हूँ, हाँ। Huh. The first time I went to States, I was 21. The second time I went to States, I was 22 and a half or something. So मैंने almost two and a half years spent किए US में. And my experience has been कि crime rate थोड़ा सा high है वहाँ पे. थोड़ा And yeah, quite high. And depending on where you go, it can get very dangerous. Like जैसे मैं लॉस एंजल्स क्या जाती लगता थी। है तुम्हें कि गवर्नमेंट ऐसी है या लोगों की साइकोलॉजी है, मतलब क्या, क्यों है ऐसा? इट्स हार्ड टू से बिकॉज मैंने नोटिस किया कि जब लोग कैलिफोर्निया से फॉर्म भरते थे फॉर जॉब्स, तो कैलिफोर्निया लोगों को 2 एक्स्ट्रा फॉर्म भरने पड़ते थे ड्रग अब्यूज के, कि आपने कौन से टाइप से ड्रग्स यूज किए एक्सेट्रा। तो आई फाउंड दैट वेरी डिस्क्रिमिनेटरी बिकॉज जस्ट बिकॉज दे फ्रॉम कैलिफोर्निया दे हैव टू फिल 2 एक्स्ट्रा फॉर्म्स और व्हाटएवर। ये भी मैंने देखा था वहां पे। और जहां मैं थी, मेरा काम जो था वो मैसाचुसेट्स में था, पर वेरी क्लोज टू न्यू हैम्पशायर। तो मुझे था कि मैं मैसाचुसेट्स में ही रहूं। पर जो वहां पे एरियाज थे, सब ने कहा नहीं नहीं ये बहुत डेंजरस एरियाज है, यहाँ पे यू कैन नॉट स्टे आसपास इधर, यू गो टू द नेक्स्ट स्टेट एंड स्टे देयर, इट इज सेफर। तो जैसे ये बॉर्डर है 2 स्टेट की, यहाँ पे इट्स एक्सट्रीमली डेंजरस एंड यहाँ पे इट्स एक्सट्रीमली सेफ। तो दैट आई फाउंड वेरी फनी, बट दिस थिंग यू डोंट फाइंड इन कनाडा एट ऑल। नो नो नो, कनाडा में कनाडा में गुड्स यू नहीं है डोंट कि फाइंड दैट ये एट ऑल। बस्तियां हैं, ये उनकी बस्ती है, ये इस कम्युनिटी है, हाँ ये वो। हाँ हाँ। तो वो थोड़े से 1-2 रीजन्स है कि ये इनके लिए है, वो उनके लिए है, या फिर अगर कहीं पे ऐसा कुछ है भी लाइक वायलेंस और व्हाटएवर रिलेटेड, तो वो वायलेंस के लिए भी जो भी एरियाज है, यू हैव टू अवॉइड दोस एरियाज। पर इतना नहीं है कि देयर इज सो मच क्राइम और व्हाटएवर, बिकॉज एंड इट्स डेंजरस फॉर पीपल जो कनाडा में रह चुके हैं, बिकॉज हम इस माइंडसेट से यूएस जाते हैं कि ठीक है, लाइक यू नो दिन दहाड़े कौन क्या करेगा, पर होता है वहां पे, दिन दहाड़े भी होता है। कोई भी स्ट्रीट पे हो सकता है। तो थोड़ा whoever's lived in Canada has to be careful, कि मेरे साथ ऐसे हो चुका तो है। तुम्हारा कभी कनाडा में कोई बुरा इंसिडेंट हुआ है कि नो, मतलब क्राइम? कभी नहीं? नहीं, भी नो नो। कोई रेसिस्ट इंसिडेंट? रेसिस्ट इंसिडेंट मेरे साथ तो नहीं हुआ। आई एम नॉट सेइंग कि नहीं है, होगा कहीं ना कहीं होगा, समथिंग मस्ट बी देयर, बट मेरे साथ कोई रेसिस्ट इंसिडेंट हुआ नहीं है, कोई स्ट्रेट अप टू माय फेस ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ नहीं है, नो। हाउ डू यू फाइंड कैनेडियंस वैसे, मतलब आप ऑलमोस्ट 9-10 साल से रह रहे हो। Um, they say it's a melting pot because it's so many cultures all living together. And plus, over the years, there's like 3-4 generations of people from different countries just melting into this culture. So I think that's the reason why सब लोग बहुत tolerant है. तो तुम्हें Everyone is कभी very लगा नहीं कि यार मैं tolerant. मतलब मैं ब्राउन लड़की हूँ या Oh, लिटिल नहीं. बेटर लुकिंग? Indians भी तो है इतने इतना. एम्बिगुअस तुम्हारे लुक्स हैं थोड़े, बट मतलब कभी लगा कि यार मैं लड़की हूँ, आई हैव अ सर्टेन एक्सेंट, या मैं मतलब इंडिया से हूँ, मैं आई एम नॉट कॉकेशियन, तो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी लिमिटेड है? कभी ऐसा कुछ फील हुआ तुम्हें कनाडा में? I didn't feel, but I won't be surprised अगर हायर लेवल पे ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन होता होगा, बट ऐसे आउट इन द ओपन तो बिल्कुल भी नहीं है। बिकॉज राइट नाउ आई वर्क फॉर HR, आई एम द हायरिंग डिपार्टमेंट, रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट, वी रिक्रूट एक्सेट्रा। सो वीव नेवर, हमने ऐसा कभी कुछ सोचा नहीं कि इस पर्सन को लेंगे कलर या ऐसे कोई चीज की वजह से और ब्ला ब्ला ब्ला। तो ऐसा कभी मैंने नहीं देखा। आई एम नॉट सेइंग कि नहीं होता होगा, मैंने कहा कि मैंने नहीं देखा ऐसा कुछ कि कोई डिस्क्रिमिनेशन लड़की और ये सब तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो एक सेपरेट डिपार्टमेंट है। My friend actually works in department, एक सेपरेट डिपार्टमेंट है जो सिर्फ एवरी कंपनी का पे जेंडर गैप चेक करते हैं। और वाह अगर उन्होंने जेंडर गैप देखा पे में, तो दे विल sue that company and the company has to issue a report as to why this happened, वाह। और उनके लाइसेंस कैंसिल हो सकते हैं। तो देयर इज अ सेपरेट डिपार्टमेंट इन द गवर्नमेंट सेक्टर जो ये चीज करते हैं कि वो लोग अगर कंप्लेन आई ऐसा कुछ आया तो वो चेक करते हैं। एंड आई आई फाइंड इट लिटिल बायस्ड कि अगर औरतों का पे ज्यादा है तो वो कंप्लेन रजिस्टर नहीं होती, अगर औरतों का पे कम है तो वो जेंडर बायस में रजिस्टर फेमिनिज्म। होती है। दिस इज द रूल ऑफ द गवर्नमेंट कि अगर औरत इज अर्निंग मोर देन द गाय, देयर इज नो, like the guy can ask for more pay or whatever, but there is no government involvement. But if the woman is getting paid less, there's government involvement. पीपल से कि जो जेंडर वेज गैप है, लाइक वुमेन आर गेटिंग पेड लाइक 70 सेंट्स एज लाइक पर डॉलर एज कंपेयर्ड टू मेन, तो वो कहाँ तक सच मानती हो तुम, कनाडा में एटलीस्ट? Canada में
जितनी भी साल I have worked with HR and payroll and everything else like that, I have not seen it. मैंने देखा नहीं है, पर it may be rampant अगर वही elsewhere. आपने पहले कहा था कि हायर लेवल पे हो सकता है। Yes, हो सकता है उस लेवल पे हो व्हाइट मेल्स ही दिखते हैं हमें। yes, but we try to, अभी मैंने नोटिस किया सारे बैंक्स भी they try की डाइवर्सिटी की डिफरेंट डाइवर्सिटी के लिए, जैसे अभी हमारे मेरे ऑफिस में भी there's 150 people, तो almost 20 कंट्रीज से लोग हैं, like born and raised in 20 different countries but working in our office, and then सबके अलग accent है, skin colors है, सबकी different race है, but yeah, there's never been an issue ever कि race के ऊपर से कुछ बोलना वगैरह. People are very careful कि जो 4 groups है that you don't, that they are very careful about that, क्योंकि कनाडा यूएस का यही अलग रूल है. यूएस में आप कंप्लेन करो, यू विल सी कि क्या jurisdiction करता है, बट कनाडा में ऑलरेडी jurisdiction इसके अगेंस्ट है. तो if you say anything against those 4 groups, then there will be there's a no tolerance policy. So I think people are very careful about that. अच्छा, तो एनजी आप एचआर में हो, अगर किसी आपके पास काफी इंडियंस के साउथ ईस्ट एशियन लोगों के रिज्यूमे आते होंगे, नए लोग इमिग्रेंट्स हैं, कुछ पीआर आते होंगे, कुछ स्टूडेंट या कुछ स्पाउसल ओपन वर्क परमिट पे, तो उनकी आप मोस्टली क्या सलाह देना चाहोगी? क्या गलतियां करते हैं वो अपने रिज्यूमे में या जॉब अप्लाई करते वक्त, जो कि इजीली अवॉइड हो सकती हैं, जो कि मे बी कल्चर डिफरेंस की वजह से हो सकता है? Yes, culture difference. So I mentor certain students that they come for internship, paid or unpaid internship in our office. So I mentor them, और जब मैं उनको mentor करती हूँ तो I highlight points like cultural difference. So when I say cultural difference, certain things in our culture is okay. Like I'll give an example so it's easy to understand. जैसे अगर मुझे आपको फाइल मांगनी है, तो हिंदी में मैं से कृपया आप फाइल लाओ, ऐसे तो मैं आपको बोलूंगी नहीं, हम ऑफिस में काम करते हैं, राइट? तो मैं बोलूंगी सुशील जरा फाइल लाना, तो मेरा वो जो टोन है ना, सुशील जरा फाइल लाना, वही मेरा प्लीज है. तो अगर मैं आपको प्लीज ना भी बोला, सुशील प्लीज जरा फाइल लाना, तो यू आर स्लो ओके, बिकॉज मेरा जो टोन है सुशील जरा फाइल लाना. अगर मैं बोलूं कि सुशील फाइल लाना या फिर सुशील फाइल लेके आओ, दैट इज रूड, दैट इज लाइक आई एम ऑर्डरिंग, आई एम बीइंग डिसरिस्पेक्टफुल. So this I try to make them understand कि when you're in Canada, you have to make use of words like please, thank you, I have a favor, if you don't mind, etc. etc. क्योंकि you are not being rude, you just don't know that in this culture, not using those words can be taken as rude. लोग आप रूड नहीं भी हो तब भी उनका इंप्रेशन जा सकता है कि बंदा बदतमीज. हाँ. एंड हमारी इंडियन लैंग्वेजेस, कुछ लैंग्वेजेस रफ है, तो मराठी जैसे बहुत रफ है, गुजराती कैन बी रफ. तो वो जब व्हेन यू स्पीक, मैंने वो नोटिस किया कि वो बैकग्राउंड के लोग जब स्पीक इन इंग्लिश, देन दे आर नॉट ट्राइंग टू बी रूड, बट दे हरियाणवी लोग ज्यादा इट कम्स अक्रॉस एज रूड. मैं कह रहा हूँ जैसे रिज्यूमे मैंने देखा है, तो अब तो मैं मतलब मैं अपने बिजनेस के लिए ज्यादा हायरिंग नहीं करता हूँ, हमारी तो स्मॉल टीम है, बट जो मतलब दिखता है, मतलब रिज्यूमे देखते ही उसको लगता है कि यार ये बंदा टैलेंटेड है, पर तुझे जॉब नहीं मिलनी, क्योंकि जिस हिसाब से तूने रिज्यूमे बनाया फॉर्मेट. So this thing when I mentor people who are applying for jobs, मैं उनको ये बोलती हूँ कि जब आप resume submit करते हो, तो your resume is everything, talks everything about you for you. आप वहाँ पे present हो नहीं, तो whatever you are, your resume has to show that. क्योंकि if you're a great person, great qualities, etc., your resume is complete trash, then they don't know कि आप कितने अच्छे हो. तो आपका resume हमारे आदत है ना, लोग एज बताते हैं, तो यहाँ पर एज नहीं बता सकते, या एज नहीं बता सकते, मैरिड नॉट मैरिड, चिल्ड्रन नहीं बता सकते, रिलीजन तक लोग लिखते हैं, तो ये सब तो चीजें that is wrong. मैं जब भी ऐसा resume देखती हूँ, I know this person is extremely new and doesn't have an idea, क्योंकि me as HR, I'm not allowed to even ask that in an interview. जब कोई इंटरव्यू पे आता है, मुझे अलाउड नहीं है कि एज पूछना या फिर उनका मैरिटल स्टेटस या फिर किड्स है या नहीं है, या ये सब इज नॉट अलाउड. रिलीजन तो बिल्कुल भी नहीं, रिलीजन तो यू कैन नॉट आस्क एट ऑल, बट एज वगैरह भी मतलब हमारे ऑफिस में तो ऐसे भी हुआ कि 2 कलीग बात कर रहे हैं और किसी ने जस्ट टू नो, लाइक नॉलेज के लिए, ऐसा नहीं कि कुछ है, नॉलेज के लिए कि ओ व्हाट रिलीजन डू यू फॉलो, और उसके ऊपर से बहुत बड़ा इशू हो गया था कि उस अदर पर्सन ने ऑफेंस लिया कि व्हाई डू यू आस्क मी कि मेरा रिलीजन क्या है. यहाँ पर लोगों को ये भी नहीं पता है कि दे कैन नॉट इवन आस्क यू वेदर यू आर अलाउड टू वर्क इन कनाडा और नॉट.
वो डिस्क्रिमिनेशन है एक तरह की। तो नहीं अलाउड नहीं, मतलब अलाउड पूछ सकते हैं पीआर, वेदर यू आर परमानेंट रेजिडेंट और नॉट। तो जो टेम्परेरी रेजिडेंट वर्कर है, जो टेम्परेरी वर्कर है, फॉरेन वर्कर है, और जो पीआर सिटीजन है, बोथ आर ट्रीटेड इक्वली। वो अलग बात है, वो अपनी तरफ से पता लगा ले, बट वो नहीं बता सकता क्योंकि इट इज काइंड ऑफ अ डिस्क्रिमिनेशन। हाँ, वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं, वो तो हम भी नहीं पूछते कि परमानेंट हो या ये हो। हम सिर्फ इतना पूछते हो कि आर यू एलिजिबल टू वर्क, कि आपके पास कोई भी पेपर वर्क है टू बी एलिजिबल फॉर वर्क। फिर जब हम पेपर वर्क करते हैं तो वो अपनी एलिजिबिलिटी लेके ही आते हैं कि आफ्टर they get the job and they submit their paperwork, they either submit their citizenship papers या फिर PR card या फिर work permit। फिर वो देख के हम ऐसे नहीं बोल सकते ओ आप तो work permit पे आप नहीं आ सकते। नो, we can't do that। एक बार वो आ गए तो we can't discriminate कि ये उनका status क्या, उससे नहीं होता discriminate। नो। चलो एनजी, थैंक यू। आप ऑलमोस्ट आधा घंटा ले लिया। अब लास्ट एक चीज की, आपको ऑलमोस्ट 9 साल हो गए हैं, तो अभी तो आपको काफी सारी चीजें पता हैं जो कि उस वक्त नहीं पता थी जब आप नए नए। बट अभी जो बच्चा नया आने चाह रहा है, वेदर एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट या कोई एज अ टेम्परेरी फॉरेन वर्कर या नया पीआर, उसको अपने एक्सपीरियंस से क्या सलाह देना चाहोगी? एक्सपीरियंस से ये बोलूंगी कि ए नेटवर्क, कनाडा में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नेटवर्क। इट्स नॉट अबाउट व्हाट यू नो, इट्स अबाउट हु यू नो। तो मोस्ट ऑफ द गुड जॉब्स, एक्सीलेंट जॉब्स, टॉप नॉट जॉब्स हमेशा सिफारिश या फिर कनेक्शंस या फिर ऐसे चीजों से जाती हैं। बिकॉज इट्स नॉट कि सिफारिश, इट्स जस्ट दैट कहीं जॉब ओपन हुई है, वो पर्सन आपको बताएगा, आप उसकी रेफरेंस डालेगा, तो मैनेजर उस रेफरेंस की वजह से आपका रिज्यूमे पिकअप करेगा। यू नो व्हाट आई मीन? तो आई वुड से नेटवर्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिटन एग्जाम नहीं होते, जीडी रिटन राउंड पे राउंड ये सब नहीं होता? नहीं। तो नेटवर्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन डेवलपिंग अ स्किल सेट। तो आप अपना मतलब आप जो भी कर रहे हो, आप फॉर द टाइम बिंग जो भी जॉब कर रहे हो, पर आपका जो स्किल सेट है वो आप कंटिन्यू कर डेवलप करते रहे, ताकि वंस यू रीच दैट स्टेज वे यूर लाइक ओके अब मैं अपनी इंडस्ट्री में जॉब करना चाहता हूँ या मैं अभी ये वाली जॉब करना, तो आपका स्किल सेट ऑलरेडी रेडी है। तो लॉट ऑफ टाइम्स मैंने यहाँ पे देखा कि जो जॉब लोग करना चाहते हैं वो जॉब के लिए वो रुकते हैं कि हमें जब मिलेगी हम सीखेंगे, बट डजंट वर्क लाइक दैट। यू हैव टू लर्न इट बिफोर। जैसे आप अगर एम्प्लॉय हो तो मैनेजर की जॉब आप पहले सीखो, ताकि व्हेन यू बिकम अ मैनेजर यू डोंट हैव टू लर्न इट, यू ऑलरेडी नो इट। तो इस तरह से इट्स इजी टू मूव अहेड। And resume is a very big issue. I have seen horrible resumes, grammatical mistakes and other things. So that's your first impression, you know. तो वो बंदे कोई वेबसाइट्स हैं, कोई चीजें जहां पर जाके वो मतलब उसको देख सकते हैं कि क्या फॉर्मेट है? फॉर्मेट्स तो ऑनलाइन बहुत है। इफ यू जस्ट गूगल रेज्यूमे फॉर्मेट्स, देयर बी अ लॉट ऑफ फॉर्मेट्स। और अभी मैं कल ही किसी को कोच कर रही थी ऑलमोस्ट फॉर 2.5 आवर्स अबाउट रेज्यूमेस। तो उसके रेज्यूमे मैंने देखा कि क्या कहते हैं, फॉर्मेटिंग चेंज हो रही है। मतलब अगर उसने वर्क एक्सपीरियंस लिखा है तो वो कीप्स चेंजिंग। तो मैंने कहा यू कांट हैव इट लाइक दैट। जैसे पहला वर्क एक्सपीरियंस टाइटल ऊपर है और कंपनी का नाम नीचे। सेकंड वर्क एक्सपीरियंस कंपनी का नाम ऊपर है, टाइटल नीचे। थर्ड वाले में दोनों नहीं है, एक ही सेंटेंस में। तो मैंने कहा यू कांट हैव, यस इट शुड बी वेरी लेजिटिमेट कि लाइक यू सी द रेज्यूमे, जो भी आपको जानना है इस पर्सन के बारे में, टक 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 आपको सब पता चल गया। बाजू में कवर लेटर है, उसमें उस पर्सन को जो भी बताना है अपने आप के बारे में एकदम शॉर्ट में बता दिया। गुड। सॉरी, हॉबीज, इंडिया में लोग हॉबीज लिखते हैं। That is something that you talk about when you come in person. अगर आपको पूछा जाएगा तो बताना। और last couple of months, not months actually, last couple of weeks I've been interviewing for a payroll coordinator. हमारी कंपनी payroll coordinator के लिए हायर करी, तो I've been interviewing people for that. और वो इंटरव्यूज मैंने काफी किए। उसमें मैंने नोटिस किया कि लोग जो क्वेश्चन पूछा गया उसका जवाब नहीं देते हैं, जो उन्होंने प्रिपेयर किया कि आपको वो अपने बारे में क्या क्या बताएंगे और उनको क्या क्या पता है वो आपको इन्फॉर्म करेंगे, वो बोले जाते हैं। तो इफ यू आस्क देम एनी क्वेश्चन, दे मूव फ्रॉम दैट क्वेश्चन, दे टेल यू व्हाट दे नो। तो एक यहाँ पर वो भी है ना, कल्चर, कवर लेटर का कल्चर है जो कि इंडिया में नहीं है इतना। तो उसके बारे में थोड़ा बताओगे जरा ब्रीफ में, मतलब क्या होता है और कैसे उससे इम्पैक्ट पड़ता है आपके हायरिंग प्रोसेस पे? कवर लेटर से इम्पैक्ट पड़ता है 100%, बिकॉज यू नो दिस पर्सन इज रियली इंटरेस्टेड इन दिस रोल।
तो दिखता है कि इस पर्सन को बहुत इंटरेस्ट इस रोल में, उसने कवर लेटर भेजने का या प्रिपेयर करने का एफर्ट लिया है. अ लॉट ऑफ पीपल मेक लाइक अ जेनेरिक कवर लेटर जो वो एवरी जॉब पे वही कवर लेटर भेजते हैं. वो दिख तो जाता है. अगर हाँ, तो अगर कोई वो कर रहा है, आई वुड सजेस्ट, आई वुड से कि एक वो थोड़ा सा वो गैप रखना कि इन योर प्रेस्टिजियस कंपनी सो एंड सो, और एज एडवर्टाइज बाय योर कंपनी दिस. तो थोड़ा ऐसा लगना चाहिए कि आपने टाइटल का भी जॉब नाम चेंज किया एज पर द एडवर्टाइज पोजिशन, एंड अपने कंपनी का भी नाम चेंज किया. तो ऐसे नहीं कि आई वांट टू अप्लाई फॉर दिस पोजीशन और आई वांट टू अप्लाई फॉर द पोजीशन यू हैव एडवर्टाइज्ड. looks bad. नहीं, and keep it very concise. बहुत सारा information मत दो. Like I've seen some people from India in their cover letters when they say that as soon as I saw this position I wanted to apply. You cannot write a story. It has to be very professional, very concise. What have you done? What companies have you worked for? And basically just saying that I believe that this aligns with my career, and the job skills and knowledge that I have are a perfect fit for this role. And I hope that I get a chance to sit down to discuss my potential and what I bring to the table. I hope I get the chance to sit and discuss with you, etc. And then anxiously waiting for your reply. It has to be very simple. इतना नहीं कि पूरी राम कथा लिखी, because people don't read it. They just want to see the key points कि what has this person. जो आपने resume में नहीं लिखा वो आप कवर लेटर में को. You don't have to be repetitive कि जो वहां पे लिखा है वही वापस यहाँ पे repeat. तो yes. बाकी लिंक्डइन वगैरह इससे कुछ फर्क, मतलब हायरिंग प्रोसेस में हेल्प मिलती है इफ यू हैव अ लिंक्डइन प्रोफाइल? मैं जब पहले मतलब अभी मैं जब when I came back 3 years ago to Toronto, तो तभी I actually went to professional help to get my resume and everything done because I wanted everything to be perfect. तो तभी मुझे elevator pitch वो चीज पता चली कि जब आप किसी को मिलते हो तो एलिवेटर पिच मतलब एलिवेटर में जितना आपके पास टाइम होता है, अगर उतना टाइम आपको किसी पर्सन के साथ है तो आप अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करोगे, तो वो उसको एलिवेटर पिच बोलते हैं. तो वो चीज, एंड देन लिंक्डइन पे कनेक्शंस बनाना, एंड देन इफ यू नो हायरिंग मैनेजर तो उसको सेपरेटली ईमेल करना. आपको अगर पता है कि आपने जिस जॉब के लिए अप्लाई किया उसका हायरिंग मैनेजर कौन है तो उसको कॉल करना या ईमेल करना, या सम पीपल इवन टेक दोस पीपल आउट फॉर लंच. तो इट्स नॉट अनप्रोफेशनल बिकॉज दे जस्ट वांट कि वो ये नहीं बोल रहे आप मुझे हायर करो, वो बस ये बोल रहे कि जब आप ये पोजीशन के लिए ढूंढोगे आई वांट माय नेम टू बी इन योर हेड फर्स्ट, आई वांट माय नेम टू पॉप अप. वो ऐसा करते हैं जैसे लड़की देखने जाते हैं ना कि पता है कि भाई पहले से ही मतलब टाका मार के रखो. तो मैंने देखा कि काफी स्मार्ट स्टूडेंट होते हैं, वो ग्रेजुएट होने से पहले उनको पता है यहाँ मुझे नौकरी करनी है, तो उनको पहले से ही मक्खन मारते हैं, मतलब कॉफी के लिए पूछेंगे, मेंटरशिप पूछेंगे, उनके कमेंट्स लाइक करेंगे, मतलब तो ये यहाँ पर है चीज जो लोगों को लगता है कि डजंट वर्क बट इट वर्क्स. It works, yeah. मुझे भी पहले ये odd लगा because I've never done something like that. But जब उस mentor ने जिसने मुझे mentor किया उसने बताया नहीं, this is like common. People are doing this. They'll go on LinkedIn, they will form connections, they will talk to people, and a lot of jobs come out of LinkedIn. A lot of jobs come out of these connections that you make. You talk to people, you ask them, and then that way you stay in their mind. And also very very important, sending a thank you email जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो. इंटरव्यू के बाद वो थैंक यू ईमेल भेजना. रिजेक्शन भी आता है तो सेइंग दैट आई रियली अप्रिशिएट दैट अपॉर्चुनिटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो चीज भी. एंड इंटरव्यू जब आप देते हो तो सारे इंटरव्यूज, ये मैंने बहुत देखा रेज्यूमे में भी एंड इन पर्सन इंटरव्यूज में भी, कि पीपल डू नॉट गिव फंक्शंस फॉर देयर एक्शंस. तो I'll give a very simple example. अगर मैंने कहा कि I cooked food to eat, I mopped the floor to clean it, I washed the utensils to clean it. So I'm telling you what I did and why I did it. But if I tell you I cook, I clean, I wash, I mop, you don't know why I'm doing it. तो why were you cooking, cleaning, washing, mopping? तो मैंने action तो बता दिया, मैंने function नहीं बताया कि उससे क्या हुआ. तो this is very important in your resume, that what you did in that company. उसके आगे ये भी लिखो कि what was accomplished by you doing that. And in person when you give interviews, always give examples. We love people when they give examples. कि जब वो बोलते हैं कि मेरा time management, हाँ मेरा time management ऐसा है, मेरे problem solving skill ऐसी है, etc etc. We always love when they give examples. कि हम नहीं बोले कि okay give an example. अगर वो खुद ही example शुरू करें तो it comes off as a very impressive interview. And people need to stop
वीकनेस में कि आई एम वेरी हार्ड वर्किंग इज माय वीकनेस. I can't stop till I finish my project. Weakness. क्या कहते हैं दूसरा? वीकनेस है I कि मैं take बहुत up too many projects. मैं बहुत I'm too हाँ honest. मैं हाँ. बहुत ईमानदार हूँ. I give my 100%. तो people have to stop doing this because वो जो वीकनेस वाला चीज है ना, वो इसलिए पूछते हैं कि हम बस जानना चाहते हैं कि आपने अपने आप को कितना इवैल्यूएट किया. They want to know that क्योंकि हर एक में एक वीकनेस होता है. एंड इट्स गुड फॉर अ रिक्रूटर टू नो, बिकॉज अगर से फॉर एग्जांपल मैं आपको से पेरोल मैनेजर के लिए हायर कर रही हूँ और आपने मुझे बोला कि मेरा टाइम एंड अटेंडेंस थोड़ा वीक है, तो मुझे पता चल जाएगा कि ये पर्सन ये रोल नहीं कर सकता. या फिर जैसे मेरा फ्रेंड गया ऑपरेशंस रोल के लिए गया और फिर उसने इंटरव्यू में कहा मेरे ऑपरेशंस वीक है, my operation skills are weak, तो फिर that person knows that then you're not fit for the job. So we just want to know if you're fit for the job or not. तो ये और एक चीज है that you just need to evaluate कि something that you can work on. Always like for weakness say something that you know it's there and for whatever reason it's there and you're working on it and you know that and make sure that it's not directly related to the job. क्योंकि अगर वो directly related to the job है then you have lost your chance to get the job. Thank you so much. Yeah. बहुत वैल्यूएबल तुमने टिप्स दिए लोगों को. तो बाकी ओंटारियो में क्या सिचुएशन है मतलब कोविड की? लॉकडाउन में थोड़ा रिलैक्स हुआ है या नहीं? रिलैक्स अभी तक तो नहीं हुआ है, बट सिचुएशन इज प्रीटी ओके. बसेस वगैरह चल रही है बट देयर इज अ लॉट ऑफ प्रिकॉशन. पीपल कांट कम क्लोज टू ड्राइवर्स वगैरह सब दवा दारू सब मिल रहा है. हाँ. ग्रोसरीज आर ओपन. या फार्मेसीज आर ओपन. ये तरह बंद नहीं करी शराब वहाँ. क्या इंडिया में तो शराब बंद कर देती ना, तो मतलब दे स्टार्ट पनिशिंग पीपल. यार कनाडा में तो एसेंशियल सर्विस है ये. या इसमें तो एसेंशियल्स में राइट. एलसीबीओ एसेंशियल्स में था कि इट्स एन एसेंशियल सर्विस. तो रीड यू नो इट्स जब शुरू हुआ था स्टार्टिंग में तब लोग बहुत स्ट्रेस आउट हुए थे, पर अभी आई गेस विद ऑल द फाइनेंशियल एड दैट केम इन एंड हमारा कर्व थोड़ा सा फ्लैटन हो गया. लाइक जितना उन्होंने एक्सपेक्ट किया था उतना हुआ नहीं. तो they've already said that they're going to ease it. Quebec are hit the hardest. yes Quebec का worst है, पर थोड़ा सा को फ्लैटन होने लग गया. तो मिड मई तक कुछ इंडस्ट्रीज ओपन हो जाएंगे and then end of May कुछ I guess are you able to go outside a little bit like for exercise, walk or things like that? Yes you can but you have to be careful. हमें पार्क्स में जाना अलाउड नहीं है, फाइन्स लगी है. और कुछ लोग क्रिकेट खेल रहे थे. हाँ मैंने देखा न्यूज़ में. तो उनको भी फाइन लगी है $880. हाँ एग्जैक्टली. और बीच पे वगैरह ग्रुप्स में घूमना इज नॉट अलाउड. अच्छा होने वाला ना, तो मुश्किल है लोगों के लिए थोड़ा घर में रहना. हाँ तो पार्क्स में घूमना, बीचेस पे घूमना, लेक शोर पे घूमना, ये राइट नाउ इज पनिशेबल फाइन. या तो वो नहीं, पर या अराउंड मूविंग टेकिंग अ वॉक इज फाइन. बाकी टॉयलेट पेपर वगैरह सब मिल रहे हैं, सारी ग्रोसरी. हाँ एवरीथिंग इज ओके. देयर इज नो इशू. वो बस एक स्टार्टिंग में था बस. नाउ एवरीथिंग इज फाइन. अच्छा अगर कैनेडियन गवर्नमेंट को इफ यू हैव टू रेट आउट ऑफ 5 कितने पॉइंट्स दोगे? ओह डेफिनेटली 5 on 5. व्हाट अबाउट ओंटारियो की जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको कितना? I would still rate it 5 on 5. They have done everything perfect. I mean, जब हमने लॉकडाउन किया था तभी हमारे ज्यादा केसेस नहीं थे. तो कुछ लोग तभी इनफैक्ट ओंटारियो में कुछ लोग लॉकडाउन के अगेंस्ट थे कि उन्होंने कहा कि हम क्यों लॉकडाउन में जा रहे हैं जब हमारे पास इतने केसेस है ही नहीं. सबसे बड़ी मतलब पॉपुलेशन वाइज और इकोनॉमी वाइज सबसे बड़ी प्रोविंस है कनाडा की. यस तो बहुत लोग इसके अगेंस्ट थे. पर जब हमने देखा कि बहुत सारी कंट्रीज का, तभी इटली और स्पेन का होने लग गया था ऑलरेडी. एंड स्पेन सेलिब्रेटेड वुमेन्स डे ऑन 8th March विथ अ लॉट ऑफ रैलीज एंड ऑल दैट. और 13th March को कंट्री शट डाउन हो गई. मतलब 5 दिन में इतना कुछ हो गया वहां पे. तो देन सो वी न्यू दैट दिस कैन गो डाउन वेरी क्विक. और जैसे ही केसेस बढ़ने लगे तो आई वाज इन सपोर्ट ऑफ शटिंग डाउन. बट देन मुझे लगा नहीं था कि होगा, पर इमीडिएटली विद इन 3-4 days इट वाज एवरीथिंग वाज शट डाउन कंप्लीटली. चलो बढ़िया है. वी आर लकी कि हम कनाडा में हैं. बीसी में कैसे है? बीसी में क्या हाल है? बीसी में तो बहुत सही है, मतलब इट्स वेरी चिल. बाकी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की तो माँ बहने को गई है, मतलब क्योंकि बीसी में यू हैव सीन हाउ ब्यूटीफुल इट इज. दुनिया भर से लोग आते हैं, तो उसका तो आफ्टर इफेक्ट्स पता पड़ेगा. अभी तो गवर्नमेंट पंप कर रही है पैसा, बीसी गवर्नमेंट भी, सेंट्रल गवर्नमेंट भी. और यहाँ पर थोड़ी
लोग भी सुन रहे हैं, मतलब तो ऑन्टेरियो से तो मच बेटर है, हमारे केसेस काफी कम है। हाँ मैंने सुना कि बट वी डोंट नो लाइक फ्यूचर। मैंने सुना इतना शटडाउन भी, इतना लॉकडाउन नहीं है, लोग थोड़ा सा मूव अराउंड कर सकते हैं बीसी में। या बट या इट्स गुड। सो थैंक यू सो मच एनजी फॉर योर टाइम। नो वरीज। कि मे बी हम इन फ्यूचर कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक लेंगे और छोटे टाइम के लिए related to HR and people finding jobs and मुझे लगता है आप काफी हेल्प कर सकते हो लोगों की अपने एक्सपीरियंस से। Yes, my pleasure. Okay. Okay. Take care. Bye, Sushil. Bye.